Hope all are you fine and safe at home. This is Cordova book class 4 term 1. From this book we are going to learn English subject. Topics are the giving tree, the circus, the granny sari, Robinson Crusoe, tree blessing, the strange medicine, the letter, silver anklets, how much do you remember, and grammar also. Now we are going to learn the giving tree. I am going to tell you a summary of this lesson. Please listen carefully. Once upon a time, there was a tree and a little boy. They enjoy each other's company. Tree said to boy to climb the tree trunk and enjoy the swing from branches. Boy enjoyed and had a fun. When the boy was tired, he slept under the tree. The tree was happy to give its shade. Time went on, boy grew older and went away. Then, after some years, the boy came to the tree and the tree was very happy. Boy said, I want some money. Tree told boy that I don't have money, but you can pluck my apples and sell them in market. Then you will have money. The boy plucked the apples and carried them away. The tree was happy. After taking apples, boy stayed away for a long time. One day, the boy came back and tree shook with joy that boy was a young man. Tree again told the young man to climb and swing from its branches and eat its apples and play in its shade and be happy. But the boy, now a young man who was getting married, needs a house for his wife and children. He told to tree, can you give me a house? With this, tree told that it have no house, but it may cut off but he may cut off its branches and build a house. So boy cut off tree's branches and carried away to build a house. The tree was again very happy. Again the boy stayed for a long time. When he came back, tree was so happy. That boy, as a young man, said to tree that he is going on a business trip. He wants a boat to take him away. He asked for a boat. With this, tree told to cut his trunk and make a boat, then you can sail. The boy, now a young man, cut the trunk of the tree and sailed away in a boat. The tree was left
only with a stump now. After a long time, the man came back again when he became old, but the tree recognized him when he was old. Then tree told the old man that it has nothing left to give him now. I am and said, I am just an old stump. Oh, I am just an old stump. But the old man told the tree that tree has always given him each and everything. He didn't need anything now. He just want a quiet place to sit and rest. With this, tree told old man to sit down and rest, as a is good for stump is good for sitting and resting. The old man did. The tree was still happy. Message: there is a great pleasure in giving. अब मैं आपको यही समरी हिंदी में बताती हूँ। एक दिन एक द गिविंग ट्री मतलब जो ट्री सब कुछ अपना था, उसका जो भी सब कुछ दूसरों को देने में मानती थी ट्री, मतलब सब जो भी उसको सबको हेल्प करती थी ट्री। एक दिन एक ट्री थी। एक समय में तब एक पेड़ था जो उसके पास आके एक छोटा बच्चा खेलने के लिए आ गया था। उस समय पेड़ ने कहा बच्चे को कि ऊपर से ट्रंक उसकी बच्चे से के डाली से कूदो और झूले खाओ डालियों से और मज़ा आएगा। फिर बच्चे ने वो पेड़ का मान के वैसे ही करने लगा। उसके बाद जब बच्चा थक गया था तो उस पेड़ के नीचे सो गया था। उससे देखकर पेड़ भी बहुत खुश हुआ और अपनी छाया देने लगा उसको। टाइम बीतता गया, बच्चा बड़ा होता गया और वो चला गया। फिर कुछ साल के बाद जब वो बच्चा वापस आया पेड़ के पास, तब पेड़ उसको देखकर बहुत खुश हुआ। बच्चे ने कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। पेड़ ने कहा बच्चे से कि मुझे पैसे नहीं है, पर मेरे यहाँ जो फल उगे हैं तू लेकर जाकर उसे बेच के मार्केट में तुझे उससे पैसे मिलेंगे। फिर बच्चे ने वो पूरे सेब लेकर चला गया और वो देख के पेड़ खुश हुआ और वह पेड़ सेब लेकर बच्चा वहाँ से चला गया और बहुत टाइम के बाद आया। तब फिर से उस पेड़ ने खुशी से अपनी मुंडी हिलाई, जो वो बच्चा बड़ा होकर एक आदमी बन गया था। फिर उस पेड़ ने आदमी से कहा कि तू इस डाली पे झूला खा और सेब खा और यहाँ पर खेल और खुश रहे। पर उस बच्चे ने जो बड़ा हो गया था उसने बोला कि मेरी अब शादी करने की उम्र है और
मुझे अपना घर बनाना है अपनी बीवी और बच्चों के लिए। मुझे घर बनाने के लिए कुछ लकड़ियाँ चाहिए। तो उस पेड़ ने बोला कि मेरे पास घर तो नहीं, पर तू मेरी ये डालियाँ और लकड़ियाँ तोड़कर ले जा और घर बना ले। फिर बच्चे ने वो जो बड़ा हो गया था उसने तोड़कर सारी डालियाँ और लकड़ियाँ लेकर चला गया और अपना घर जाके बनाया। फिर से वही पेड़ बहुत खुश हो गया देखकर। फिर से बच्चा बहुत टाइम के बाद आया तब और वापस आ गया और इससे पेड़ खुश हो गया। तब वही बच्चा बड़ा आदमी बनकर फिर से आया और उसने बोला कि मुझे कहीं दूर उस पार जाना है। उस पार जाने के लिए मुझे एक नाव की ज़रूरत है। तब पेड़ ने बोला कि कुछ लकड़ियाँ काट के मेरे पेड़ से नाव बना ले और फिर उसे लेकर उस किनारे पे ले जा। फिर से वही जो बड़ा हो गया था आदमी, उसने ऐसा फिर से चला गया नाव लेकर। और तब बाकी अभी देखा जाए तो पेड़ के पास एक खाली छोटा सा टुकड़ा बचा था जिससे कुछ भी वह अब पेड़ किसी को देने लायक नहीं था। फिर से वही बच्चा बड़ा होकर बूढ़ा हो गया था। फिर से वापस आया उस पेड़ के पास, तो भी उस पेड़ ने उसको पहचान लिया और उसे देखकर खुश हुआ। लेकिन उस पेड़ ने उस बूढ़े आदमी से कहा कि अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर उस बूढ़े इंसान ने पेड़ को कहा, आज मैं तुझसे कुछ लेने नहीं आया हूँ। तूने हर रोज़ मुझे कुछ न कुछ दिया है। मैं तुझसे लेने नहीं आया हूँ। सिर्फ मैं बूढ़ा हो गया हूँ, थक गया हूँ, तो मुझे बैठने के लिए कोई जगह चाहिए और आराम करने के लिए। तब पेड़ ने कहा कि ये छोटा जो झाड़ का टुकड़ा बचा है वही उसके ऊपर बैठ जा और आराम कर। फिर उस बूढ़े इंसान ने माना और बैठ गया और इससे पेड़ तो भी खुश हुआ। मतलब उसने हर एक चीज़ अपनी समर्पित की तो भी वो खुश रहता था। उसके पास छोटा सा झाड़ का एक टुकड़ा था तो भी देने के लिए तैयार था। इससे हमें यह सीख मिलती है कि देने में ही खुशी है, देने से ही कुछ पा सकते हैं और अपने आप को खुश रख सकते हैं। अब मैं आपको एक एक वर्ड रीड करके समझाती हूँ। द गिविंग ट्री मीन्स जो ट्री अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया। ONCE once there was a tree and it loved a little boy. Every day the boy would visit the tree and enjoyed its company. COMPANY company. एक टाइम एक पेड़ था जो एक बच्चे को बहुत चाहने लगा। वो बच्चा हर रोज़ उसके पास खेलने आता था और उसे पेड़ की कंपनी बहुत पसंद थी। तब कंपनी मतलब उसका साथ। फिर कम हेयर माय बॉय, क्लाइंब अप माय ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस, मतलब इधर आओ और मेरी डालियों से कूदो और झूला खाओ। बच्चे ने बोला व्हाट फन।
When the boy was tired, he slept under the tree. S-L-E-P-T, slept. Slept मतलब सोना. Under the tree, the tree was happy to give its shade, S-H-A-D-E, shade. Time went by. The boy grew, G-R-E-W, grew older, O-L-D-E-R, older, and went away. When the boy was tired, मतलब तब बच्चा टायर्ड, खेल के थक गया था और वह पेड़ के नीचे सो गया. पेड़ भी उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसे और छाया देने लगा, और ऐसे करके बच्चा थोड़ा बड़ा होता गया और वहाँ से चला गया. AFTER, after some years, the boy came to the tree and the tree was very happy. कुछ सालों के बाद वही बच्चा चला गया और फिर से आया और उसे देखकर पेड़ बहुत खुश हुआ. Climb up my trunk and swing from my branches. उसने बोला मेरे इधर कूद का लगा और झूले खा, ऐसे कर वैसे ही बोलता रहता था. I am too big to climb and play. अब बच्चे ने बोला मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं कैसे जंप करूँ, कैसे खेलूँगा. I want some money. मुझे पैसा चाहिए. Can you give me some money? उसने बोला मुझे कुछ पैसे दे सकते हो. I am sorry but I have no money. You can pluck my apples and sell them in the market, M-A-R-K-E-T, market. Then you will have money, M-O-N-E-Y, money. उसने बोला सॉरी मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ जो फल लगे हुए हैं वो फल तोड़ के तू ले जा और बाज़ार में बेच के उसमें से पैसे कमा ले. The boy plucked the apples, P-L-U-C-K-E-D, plucked the apples, C-A-R-R-I-E-D, carried them away. The tree was happy. बच्चे ने वो एप्पल सेब लेके और चला गया और इससे पेड़ खुश हो गया. One day the boy came back and the tree shook with joy. The boy was now a young man. कुछ सालों के बाद वही बच्चा बड़ा होके जो मैन बन गया था, उसे देख यंग मैन हो गया था, मतलब बड़ा आदमी बन गया था. उसे देखकर पेड़ भी खुश हुआ और उसने अपना सिर हिलाया. Come and climb up my trunk, swing from my branches, eat my apples, play in my shade and be happy. फिर से उसने बोला कि तू पेड़ से कूद, खेल और सेब खा और आराम कर और खुश रह. तो After taking the apples, the boy stayed away for a long time. After taking the apples, the boy stayed away for a long time. S-T-A-Y-E-D, stayed मतलब वहीं ये सेब लेकर वहाँ से चला गया बहुत टाइम तक. I am too busy to climb the trees. I am getting married, M-A-R-R-I-E-D, married, and I need
a house, house, house for my wife and children, children. Can you give me a house? उसने बोला अब मैं बड़ा हो गया हूँ, बच्चा नहीं रहा, और मैं शादी भी करने वाला हूँ और मुझे घर चाहिए अपने बीबी और बच्चों के लिए, क्या तुम मुझे घर दोगे? I have no house, but you may cut off my branches and build a house. मेरी डालियाँ लेकर काट कर उससे जाके घर बनाओ. So the boy, now a young man, cut off the tree's branches, 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 and carried them away to build a house. The tree was very happy. फिर वही बच्चा बड़ा हो गया था और पेड़ की डालियाँ काटकर घर बनाने के लिए ले गया. इससे पेड़ बहुत खुश हुआ. Again the boy stayed stayed away for a long time. When he came back after some time, the tree was so happy that it could hardly hardly speak. speak. बॉय फिर से चला गया और वापस आया कुछ टाइम के बाद, तो वही ट्री उसे देखकर बहुत खुश हुआ. वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था. आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप. आई वॉन्ट अ बोट BOAT boat to take me away. Can you give me a boat? उसने बोला कि मुझे बाहर कहीं अपने धंधे के लिए जाना पड़ेगा, क्या मुझे तुम नाव बनाकर दे सकोगे? Cut down my trunk and make a boat, then you can sail away. अब ये डालियाँ ले जा और बोट बनाकर ले जा, ताकि तू उस बोट नाव में बैठकर दूसरे किनारे पहुँच पाए. The boy, now a man, cut the trunk of the tree and sailed away in a boat. अब जो बच्चा छोटा बड़ा हो गया था, फिर उस डाली को ले गया और नाव बनाकर उसमें बैठकर उस किनारे जाके पहुंचा. After a long time, the man came back again. Now he was no longer young. He became old, but the tree recognized him. कुछ टाइम के बाद जब वही आदमी वापस आया, तो उसे पेड़ ने पहचान लिया और उसे देखकर खुश हो गया. I am sorry, I wish that I could give you something, 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 but I have nothing left, NOTHING, nothing, LEFT, left. I am just an old stump. ओल्ड स्टम्प मतलब छोटा सा लकड़ी जितना, इतना ही बचा है स्टम्प. Dear tree, you have always given, but now I don't need much, just a quiet place to sit and rest. उसने बोला कि
मुझे कुछ भी नहीं चाहिए ऐसा अब, मुझे सिर्फ बैठना और आराम करने के लिए चाहिए जगह। वेल, एन ओल्ड स्टम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग, कम फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट। उसने बूढ़े आदमी को फिर बोला कि अब तो बैठ जा और आराम कर। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद द स्टम्प। वो सिर्फ स्टम्प से ही, मतलब सिर्फ ये छोटा सा लकड़ा ही बचा था उसके लिए बैठने के लिए। द ओल्ड मैन डिड, फिर उस बूढ़े ने वैसा ही किया। द ट्री वॉज स्टिल, STILL, स्टिल हैप्पी। तो भी इतना सब देने के बाद भी वो खुश था। और हु डू यू थिंक वॉज अ ट्रू फ्रेंड, द ट्री और अ ओल्ड मैन? कौन था? पेड़ ही था सच्चा दोस्त, जो सब कुछ अपना देने के लिए तैयार था। मैसेज, देयर इज़ अ GREAT, ग्रेट, PLEASURE, प्लेजर इन गिविंग। देयर इज़ अ ग्रेट प्लेजर इन गिविंग, मतलब हमें तभी खुशी मिलती है, संतोष मिलता है जब हम कुछ अपना दे सकें और दूसरों को खुश रख सकें। अब ये डिक्शनरी की मीनिंग्स दी हुई है जो आप लोगों को मैं समझा रही हूँ, उससे आपको नोटबुक में होमवर्क में लिख कर रखना है। बिजनेस ट्रिप मतलब अ जर्नी फॉर मेकिंग, बाइंग, सेलिंग और सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी। मतलब बिजनेस ट्रिप मतलब अपने धंधे के लिए बाहर आना जाना, बेचना, लेना, ये सब करना। क्लाइंब मतलब टू गो अप, मतलब ऊपर जाना। कंपनी, बीइंग विथ समवन, मतलब किसी के साथ खेलना। HARDLY, हार्डली, मतलब लगभग। ऑलमोस्ट नॉट, हार्डली मतलब शायद, हार्डली मतलब ऑलमोस्ट नॉट मतलब उसके साथ नहीं। जॉय, अ फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, मतलब खुश होना। प्लक, टू पिक अ फ्रूट, मतलब पेड़ में से फूल तोड़ना या फल तोड़ना। QUIET, क्वाइट, क्वाइट मतलब शांति से। विदाउट मच नॉइस और एक्टिविटी, पीसफुली। रिकॉग्नाइज्ड, RECOGNISED, रिकॉग्नाइज्ड, IDENTIFIED, आइडेंटिफाइड। समवन, ऑफ वन, व्हेन यू सॉ और हर्ड दैम, मतलब किसी को पहचान लेना, वो मिले फिर भी। SAILED, सेल्ड, ट्रैवल्ड ऑन अ वाटर, मतलब पानी पर बोट या कुछ किसी के अंदर जाना। शेड, एन एरिया दैट इज़ डार्क एंड कूल अंडर और बीइंग बिहाइंड समथिंग, मतलब किसी छाया के नीचे बैठना। शेयर, टू गिव सम ऑफ व्हाट यू हैव सम टू समबडी एल्स, किसी और को अपनी चीज़ें बांटना। स्टेड, कंटिन्यू टू बी इन अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम से एक ही जगह पर रहना। स्टम्प, the bottom part of the tree left in the ground after the rest have been cut down, मतलब पेड़ का नीचे का भाग जो कोनी रह गई हो उसे स्टम्प बोलते हैं। स्विंग, मूव बैकवर्ड और फॉरवर्ड फ्रॉम साइड टू साइड वाइल हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, मतलब एक डोरी से झूला बंधा हुआ हो
जिस पर बच्चे बैठ के खाते हैं झूले। टायर्ड, रीडिंग, नीडिंग रेस्ट, फेल, दैट यू नीड टू रेस्ट और स्लीप, थक जाना और आराम करना। ट्रंक, द थिक मेन स्टेम ऑफ अ ट्री, ट्रंक मतलब मोटा सा झाड़ की मोटी सी डंडी। विश, टू वांट समथिंग टू हैपन, मतलब अपनी इच्छा प्रकट करना कि ये हो जाए काम मेरा, ऐसा।